friends, good morning. Raoult's law as class 12 chemistry and it is period of solutions and second part. The Raoult's law, what is Raoult's law? Raoult's law is according to Raoult's law, the paper in a given solution is given by even given by देखिए इसमें according to Raoult's law the vapor pressure of a volatile component in a given solution is given by P1 equal to x1 P1 power 0. In the solution of a gas in a liquid, one of the component of volatile that it exists as a gas, and we have already seen that its solubility is given by Henry's law. Henry's law what? P equal to KHX. P equal to KHX. If we complete the equation for Raoult's law and Henry's law, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction. And vapor pressure of a solution of solid. Another important class of solution consists of solid dissolved in liquid, and for example sodium chloride, glucose, urea and cane sugar in water, and iodine and sulfur dissolved in carbon disulfide. एंड जैसे क्या होता है शुगर, वाटर, आयोडीन, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, प्योर सॉल्वेंट इसको कहते हैं. इसको क्या कहा जाता है, प्योर सॉल्वेंट. तो इस तरह से में एंड राउल्स लॉ का स्टेटमेंट भी नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द solution is directly proportional to its mole fraction. It is Raoult's law. For any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. P1 equal to x1 and P1 equal to x1, P1 power 0. x1 be mole fraction, P1 power 0 with the vapor pressure. P1 power 0 is vapor pressure in distance, and x1 be the mole fraction. So P1 proportional x1 and P1 equal to x1 P1 power 0, and vapor pressure mole fraction. If we plot a graph between vapor pressure and mole fraction, then we gain a straight line. The solution, ideal solution, ideal and non-ideal solution. What is ideal solution? We have ideal solution, the solution which obey Raoult's law. The solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solution. The ideal solution have the other important property, the enthalpy of mixing of the pure component. The enthalpy of mixing of the pure component to form the solution is 0 and volume of the mixing is 0. Delta M mixing, delta H mixing equal to 0 and delta P mixing equal to 0. Non-ideal solution. What is non-ideal solution? The solution which does not obey Raoult's law, that is called non-ideal solution. Non-ideal solution. Raoult's law, if it is higher, the solution exists positive deviation. If solution exists positive deviation, and if it is lower, it exists negative deviation from Raoult's law. ठीक है, Raoult's law. The vapor pressure of a function of mole fraction for such solution are shown in figure, and mole fraction and vapor pressure is not be often a straight line in a graph of non-ideal solution. And acetone, this is because chloroform molecule is able to form hydrogen bond with acetone molecule as shown. Molecule acetone, this is acetone and this is acetone, and this is chloroform CHCl3. CHCl3 is chloroform. They decrease the escaping tendency of molecules for each component, and consequently the vapor pressure decrease, resulting in negative deviation from Raoult's law. Some liquids are mixing from azeotrophs, which are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase, while
at a constant measure. In such case, if it is not possible to separate the component by fraction distillation, there are two types of azeotrophs called minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. And colligative property, what is colligative property? And determination of molar mass. So all these properties we have learned in section that the vapor pressure of a solution decrease when a non-volatile solute is added to a volatile solvent. There are many properties of solution which are connected with the decrease of vapor pressure. These are relative lowering of vapor pressure of the solvent and diffraction freezing point of the solvent and elevation of volume point of the element. all these properties depend on the number of solute particles irrespective to their nature relative to the total number of partials present in the solution. Such properties are called colligative property. What is colligative property? All these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative property. ठीक क्या होता है, यानी कि ऑल वही सभी प्रॉपर्टी जिसपे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ उनके सलूट, नंबर ऑफ जो सलूट होते हैं पार्टिकल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन में जो पूरे यानी कि पार्टिकल्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिपेंड वो होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लैटिन सो मीन्स टुगेदर यानी कि साथ साथ. इसका मतलब होता है कि साथ साथ. ठीक है. एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वी हैव लर्न. जैसे हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज लेस देन दी प्योर सॉल्वेंट. रिजल्ट एस्टेब्लिश दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर depends only on the concentration of the solute particles and it is depend of their particle. The equation given in the equation जैसे क्या है, P1 इक्वल टू x1 P1 पावर 0, P1 इक्वल टू x1 P1 पावर 0 हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग. तो इसमें क्या है, द रिडक्शन इन दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा P इज गिवन एज. तो रिडक्शन क्या होगा, डेल्टा P इक्वल टू P1 पावर 0 माइनस P1 इक्वल टू P1 पावर 0 माइनस P1 पावर 0 x इक्वल टू P1 पावर 0. हम जैसे कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस x1 1 माइनस x1 बचेगा. Knowing that x2 equal to 1 minus x1, equation 2.23 reduced to delta P1 equal to x2 P1 power 0. Delta P1 equal to क्या है, x2 P1 power 0. ठीक. In a solution containing several non-volatile solute, the lowering of the vapor pressure depend on the sum of the mole fraction of the different solutes. Equation 2.24 can be written as, इसको कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन 2.25 को कैसे हम लिख सकते हैं, डेल्टा पी जैसे है तो डेल्टा P1 अपान P1 पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 पावर 0 माइनस P1 अपान P1 पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू यही x2 है, यही क्या है x2. ठीक है, इसी यही x2 है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. द इक्वेशन कैन बी रिटन एज P1 पावर 0 जैसे P1 पावर 0 माइनस P1 अपान P1 पावर 0 इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2. सिंस x2 इक्वल टू क्या होता है, x2 इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2. हियर N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स. N1 N2 क्या है यहाँ पे, N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है. ठीक है, तो N1 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, N2 का मान बहुत N1 से कम होता है, नेग्लेक्टिंग N2. इन द डिनोमिनेटर वी हैव P1 पावर 0 माइनस P1 अपान P1 पावर 0 इक्वल टू N2 अपान N1. तो P1 पावर 0 माइनस P1 अपान P1 पावर 0 इक्वल टू W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1.
ठीक है. Here W1 and W2 are the masses. W1 W2 क्या है, मास है. एंड M1 and M2 are the molar mass of the solvent. M1 M2 यानी कैपिटल M1 एंड M2 क्या है, मोलर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो W1 एंड W2 यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M1 एंड M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है. ठीक, कंफर्म हुआ. फ्रॉम द इक्वेशन 2.28 knowing all the other quantities the molar mass of solute M2 can be calculated. M2 को हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. The vapor pressure of a pure benzene at a certain temperature is 0.850 for a non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass of 78 gram mole inverse, vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? तो वही फार्मूला हम लगाएंगे. देखिए, the various quantities known as the P1 power 0 यहाँ पर क्या दिया गया है, 0.854 and P equal to 0.8545 बार है. M1 इक्वल टू 78 ग्राम मोल इनवर्स एंड V2 इक्वल टू 0.5 ग्राम है एंड V1 इक्वल टू 39 ग्राम. ठीक, W1 W2 है. क्या है, W1 एंड W2. W2 इक्वल टू 0.5 ग्राम है एंड W1 इक्वल टू 39 ग्राम. सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2.28 जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करिए. M2 इक्वल टू क्या हो गया, 170 ग्राम मोल इनवर्स. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जैसे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज, जब हम किसी को बॉयल करते हैं क्या होता है, जितने टेम्परेचर पर कोई यानी कि सभी यानी क्या होते हैं, वाष्प में चेंज होते हैं, उबलने लगते हैं, वाष्पीकरण हो जाता है, वही क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट. वी हैव लर्नड इन यूनिट 5 जैसे क्लास 11 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, एलिवेशन पॉइंट के बारे में. इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर व्हेन विच इट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर. ठीक है, इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर. जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या हो, इक्वल हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी जिस ताप पर यानी कि क्या हो वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का मान जो है वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडली इसको एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है. ठीक, अब देखिए, लेट T0 बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. लेट टी बी यानी कि लेट Tb पावर 0 बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड Tb बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू डेल्टा Tb इक्वल टू Tb माइनस Tb पावर 0 इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. इसको क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा Tb इक्वल टू Tb माइनस Tb पावर 0 इज नोन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा Tb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन. थस डेल्टा Tb प्रोपोर्शनल m आर डेल्टा Tb इक्वल टू Kb m. ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. तो Kb इज कॉल्ड क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कुछ भी कर सकते हैं. ठीक, तो m कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू W2 अपान M2 इंटू W1 अपान 1000. ठीक है, 1000 इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपान M2 इंटू W1. ठीक, और W2 W1 बता दिया ये. अब यहाँ पर डेल्टा Tb हम निकाल सकते हैं, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू 1000 इंटू W2 अपान M2 इंटू W2. तो M2 क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू 1000 यानी 1000 इंटू W2 इंटू Kb अपान डेल्टा Tb इंटू W1. थस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन M2 molar mass of the solute known mass of solute is known as mass of the solvent is taken and delta Tb is determined experimental for known
सॉल्वेंट वाइज केवी वैल्यू इज नोन, ठीक है, ये हो गया। अब एक एग्जांपल दिया गया है, देख लीजिए इसको। जैसे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन ए saucepan at what temperature will water boil at 1.013 bar kV for water is 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। मोल ऑफ ग्लूकोज क्या दिया है? 18 ग्राम पर 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स 1 kg है, ठीक। 10 मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज 0.1 मोल किलोग्राम फॉर वाटर चेंजिंग इन वॉल्यूम पॉइंट। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम है, इक्वल टू 0.52 इंटू किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू 0.1 मोल किलोग्राम इनवर्स इक्वल टू 0.052 के, ठीक। सिंस वाटर बॉयल्स एट 373.15 केल्विन, ठीक, ये हो गया। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम देखते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जो गिरावट होती है वो क्या है। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर वेपर प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर हो गया, टेम्परेचर एंड फ्रोजन सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट सोल्यूशन। फ्रोजन सॉल्वेंट यानी जमा हुआ जो है, लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पे है सोल्यूशन जैसे, ठीक। फ्रोजन सॉल्वेंट का क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैसे गिरता है। यानी कोई चीज़ जब सॉलिड स्टेट में होगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब लेट T1 पावर 0 बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड T1 बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज डिसॉल्व इन इट। द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू T1 पावर 0 माइनस T इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होता है, TF पावर 0 माइनस TF, ठीक है। सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलरिटी के। जैसे डेल्टा TF प्रोपोर्शनल एम हो गया एंड डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम। Thus, the proportionality constant Kf, which depends on the nature of the solvent, is known as freezing point. Depression constant or molar depression constant or cryostic constant. The unit of Kf is K kilogram mole inverse. Values of Kf for some common salts are listed in table. एक टेबल में दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, if W2 gram of the solute having molar mass as M2 present in W1 gram of solvent. if W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का जैसे W2 ग्राम लिया जाए, ठीक है, मोलर मास एज M2 प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। W1 ग्राम में क्या हो, सॉल्वेंट, प्रोड्यूस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF ऑफ द सॉल्वेंट, देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन बाय द इक्वेशन। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, M इक्वल टू यानी कि W2 अपान M2 अपान W1 अपान 1000। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलरिटी इन इक्वेशन 2.34 में करते हैं तो क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 अपान M2 अपान W1। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 अपान इंटू 1000 अपान M2 इंटू W2। तो मेन फार्मूला ये है, M2 इक्वल टू KF इंटू W2 अपान 1000 अपान डेल्टा TF इंटू W1. Thus, for determining the molar mass of the solute, we should know the quantity W1, W2, delta TF along with the molar freezing point, depression constant. The values of Kf and Kb, which depends upon the nature of the solvent, can be ascertained from the following reaction. तो Kf क्या हो गया, Kf इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर upon 1000 into delta F fusion into H and Kb equal to Kf and Kb. The value of Kf and Kb which depend upon the nature solvent. तो Kb इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू M1 इंटू TV स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन H, ठीक है। एंड
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के एफ और के वी, के एफ और यानी फ्रीजिंग पॉइंट एंड के वी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यानी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, और इसे आपको ध्यान में रखना है। ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप जो है लर्न कर लेंगे, ठीक है। इस टेबल को आप लर्न कर लेंगे। एक आख हम एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद ये देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया है जो, एंड इसमें क्या है, 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकल C2H6O to emit 6 gram of water. Calculate the freezing point depression and the freezing point of the solution. The depression in freezing point in solution is molality. Therefore, the molality of the solution with respect to ethylene glycol equal to moles of ethylene glycol upon mass of water in kilogram. तो mass of ethylene glycol equal to 45 ग्राम अपॉन 62 ग्राम मोल इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, 0.73 मोल, एंड मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम इक्वल टू 600 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम किलोग्राम इनवर्स इक्वल टू 0.6 किलोग्राम. The hence molality of ethylene glycol equal to 0.73 upon 0.60 equal to 1.2 mole kilogram inverse. Therefore, freezing point depression equal to delta TF equal to 1.86 kilogram mole inverse into 1.2 mole kilogram inverse equal to 2.2 Kelvin. ठीक. अब ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम देख लेते हैं. ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर. ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है? देयर आर मेनी फिनोमिनान विच वी ऑब्जर्व द नेचर आर एट होम. जैसे रॉ मैंगोज सिवली व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन साल्ट वाटर, जैसे हम रखा जाता है क्या होता है, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन फ्लाइड इन फ्रेश वाटर. तो जैसे जब उसमें रखा जाता है कि यानी कि नमक वाले पानी में जब अचार को हम रखते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर जैसे इंक्रीज करता है. ब्लड cells collapse when suspend its saline water. If we look into this process, we find one thing common in all, that all these substances are bound by the membrane. उनके बाहर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन यानी कि लगा होता है. तो इसमें देखिए दिस प्रोसेस आप फॉलो ऑफ द कांस्टेंट. एक चीज इसको समझ लीजिए. एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, यानी एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट molecules can pass through these semi permeable membranes. कुछ membranes रहते हैं उससे केवल वाटर मॉलिक्यूल ही पास हो पाते हैं. If this membrane is placed between the solvent and solution as shown, the solvent molecules will flow. The solvent molecules will throw the membrane from pure solvent to the solution. यानी कि solvent जो है pure solution से कहाँ यानी पास करता है, pure solvent to the solution. This process of flow आप है सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस यानी इसको परासरण दाब हिंदी में कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर. ठीक, यानी कि जैसे हम कोई चीज़ रख देते हैं, ठीक, या मान लीजिए एक आम यानी कि लगा हुआ, फिर या अंगूर रख देते हैं, अंगूर के बाहर जो है यानी साल्टी वाटर रख देते हैं, तो क्या होता है, ये प्रेशर इंक्रीज करता है. तो वाटर जो है, वाटर किधर यानी कि वो करेगा, तो वाटर निकल के किधर जाएगा, यानी साल्टी वाटर की तरफ जाएगा. ठीक है, तो इसको हम ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं. ऑस्मोसिस दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दी यानी प्रेशर दैट जस्ट जिससे कि स्टॉप हो जाए, स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. जब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पूरी तरह से यानी बंद हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, और इसको पाई से डिनोट करते हैं. ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ध्यान दीजिए, पाई से डिनोट होता है. पाई इक्वल टू CRT. ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं, पाई इक्वल टू CRT. पाई की तरह जी इसका स्ट्रक्चर होता है. हेंस पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड R इज द गैस कांस्टेंट. R क्या होता है, गैस कांस्टेंट. पाई इक्वल टू N2 अपॉन V RT, N2 अपॉन V इंटू RT. R क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है. R जो है रेडबर्ग कांस्टेंट. ठीक, I इक्वल टू N2 अपॉन V CRT.
हियर वी इज दी, हियर वी क्या है, वी दी वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन लीटर्स containing N2 moles of solute if W2 gram of a solution of M2 is present in solution, then N2 equal to W2 upon M2 and we can write 5 equal to W2 RT upon M2 और M2 equal to W2 RT upon 5V। M2 equal to क्या होता है, W2 RT upon 5V। ठीक है, जहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ M2 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2, ये सब दिया गया है। एंड M2 इक्वल टू W2 RT अपॉन 5V। दस knowing the quantity W2, T, 5 and V, we can calculate the molar mass of the solute। हम मोलर मास जो है निकाल सकते हैं इसी का। ठीक है, टू solution having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution।